Pooja Bera and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and staying absolutely safe at home. Please do ignore the mess in the background. Pooja Bera can't start her video without a mess in the background. Please understand that. Now this video is going to be so happening. I'm literally very excited because we are going to a trip after so long. Now this is a trip to Divyagar beach. For those who don't know, Divyagar beach is in Konkan. So we are going to explore some beaches right out there. It's going to be super fun. I'm going to vlog it for you guys. It's going to be a straight 3 days trip. Now we decided to go for a road trip. So we do have our car and I'm not sure how long it's going to take us to reach there. But I'm anticipating it should take somewhere around 7 to 8 hours. Let's see how the trip goes. अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सो मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एक राज की बात बताओ, मैंने ना लिटरली 15-16 क्लोथ्स अपने बैग में डाले हैं. एंड अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी ये चीज़ पता चलती है, दे आर गोइंग टू किक दैट बैग ऑन माई फेस. मैं किसी को बताने नहीं वाली एनीवेज. सो या I'll catch you guys super soon. Oh my god, I'm such a lazy ass. मैं हर जगह वो सोती गिरते ही रहती हूँ. अगर आप में से ऐसे कोई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन. लंच के लिए हम रुक गए अनिकेत रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने बहुत सारे नॉनवेज फूड आइटम्स खाए. एंड उसके बाद थोड़ा ड्राइव करने के बाद वी सॉ दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी. वी सैट देयर, वी क्लिक्ड अ फ्यू पिक्चर्स. Alright, it's 7:25 at the moment and अभी हम जस्ट श्रीवर्धन बीच पहुँचे हैं. Now यहाँ की लाइटिंग इतनी कुछ खास नहीं है, which is why I won't be able to show you guys the beauty of the beach. Although I could hear the beach waves, काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है. And right now we are looking out for the property right here. मतलब होम स्टे के लिए हम लोग देख रहे हैं मोस्टली. So वही आजू बाजू के पेडेस्ट्रियंस को पूछने वाले कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है या नहीं यहाँ पे रहने के लिए. एंड उसके बाद जो कुछ भी बंदोबस्त होता है, I'll definitely let you guys know about that. एंड या मॉर्निंग को देखते हैं कौन से बीच जाने वाले हैं. whichever things we decide, I'll definitely keep you guys posted on that. So this is the place where we decided to reside. It's called Gulmohar Family Guest House. गूगल मैप से अगर आप सर्च करोगे तो आपको पक्का ही पक्का मिल जाएगा. So that's the first view of my property and the vicinity. I'm really impressed with this beauty. Oh my god. Now, मैं majority of the times इसी स्विंग में पड़ी हुई थी. I was reading your messages, replying to you guys. I love you guys a lot. Now, it's time for the room tour. Now, bloggers mostly क्या करते हैं, aesthetic rooms लेते हैं, which is quite expensive and really out of my budget. So मैंने decide किया मैं एक simple सा decent सा room ले लूँगी जिसपे 2 बेड्स होंगे, 4 लोग आराम से रह पाएंगे. So which was a good thing. And इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा सा washroom है, which is clean. That is all I want. Hey you guys, good morning. Good morning from Shrivardan actually. So we booked a property near Shrivardan. So उसका टूर तो अब तक आपने देख ही लिया होगा. The rooms are pretty decent I would say and priced भी काफ़ी affordable range में था. It was for somewhere around 1700 and I must say the rooms are cool. I personally love the fact कि यहाँ पे nature काफ़ी अच्छा है. कल की स्टोरी में एक बताओ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा होम स्टे के प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे थे यहाँ आजू बाजू के विसिनिटी में. एंड पीपल वर फूलिंग अस अराउंड, लाइक लिटरली हम फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में भी जाके मतलब दे वर शोइंग अस होम स्टे का प्रॉपर्टी. एंड ओ माई गॉड दैट वॉज सो फ्रिकिंग फ्रस्ट्रेटिंग, बट नेवर माइंड. अब मैंने बता दिया है आपको कहाँ पे होम स्टे के लिए आपको जाना चाहिए. So definitely check out this property in case you are interested. यार हाथ दुख रहा है ब्लॉग कर करके, but the sun is striking right on my face. I'm loving this and nature around is so freaking beautiful. मैं तो वेट ही कर रही हूँ यार कब बीच पे जाऊँगी. यार बहुत सारे रील शूट करने हैं, so I'm already in a hurry, जिस वजह से I woke up early like by 8.
एंड यार रील वील ख़त्म करके उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ. सो आई विल कैच यू गाइस सुपर सून. माई ओजी फैंस वुड ऑलरेडी नो, मैं जब कभी भी बाहर निकलती हूँ मैं ढेर सारा खाना खाती हूँ एंड आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड. मैं काफी सारा आइटम्स खा लेती हूँ एक ही टाइम पे. दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ माइन. आई लव ईटिंग मैगीज आउटसाइड एंड दिस वन वॉज वेरी वेरी चीजी मैगी. आई literally loved it and I would highly recommend you guys visiting this place. So right now I'm at Srivardhan Beach and यहाँ का व्यू, oh my god, that's breathtaking. काफ़ी ज़्यादा बीच वेव्स के साउंड आ रहे हैं. आई एम नॉट श्योर इस वीडियो में मेरा आवाज़ सही से आने भी वाला है या नहीं. oh my god, look at that. बीच भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है. so those who like to have fun in clean beaches, I would definitely suggest you guys this one. काफ़ी पीसफुल एरिया है. आई लव द वे हाउ द शेड्स आर लुकिंग ऑन मी. फाइनली टाइम मिल गया इतने सारे कपड़े पहनने के. सो मैंने एक भी मौका नहीं छोड़ा है. ऑल्सो आई एम मिसिंग माई मॉम अलॉट. आई विश शी वॉज हियर. और मुझे बहुत अच्छा लगता यहाँ पे आके. ऑल्सो जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रह रहे थे वहाँ से ये कुछ 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे है. ऑल्सो वुड सजेस्ट कि आप अगर कभी भी यहाँ पे आ रहे हो तो आसपास के फूड स्टॉल्स तो आपने चेकआउट करने ही चाहिए. मैंने लिटरली हर एक डिश यहाँ की ट्राई की एंड आई एम ऑस्ट्रक क्योंकि यहाँ पे सारे ही फूड आइटम्स इतने अच्छे हैं. अलग ही टेस्ट है एंड अलग ही फील है. सो डेफिनेटली चेक दोज लोकल फूड स्टॉल्स नियर बाय दिस बीच. नॉनवेज लवर्स, ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज मेंट टू बी फॉर यू. यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी के नॉनवेज थालीज मिलेंगे. आई हैव ट्राइड चिकन मसाला थाली, पॉम्फ्रेट थाली, सुरमई थाली, प्रॉन्स थाली एंड चिकन कोलीवाड़ा थाली. ऑल ऑफ देम वर सुपर डिलीशियस. ऑलराइट, सो रात का खाना काफ़ी मज़ेदार था. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट प्लेस. दैट फूड प्लेस वॉज कॉल्ड तौनसारकर. आप जब कभी भी श्रीवर्धन में आ रहे हो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट फूड प्लेस बिकॉज काफ़ी रीज़नेबल रेट था थाली का. आई वुड रादर से 350 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छे अच्छे नॉनवेज थालीज़ मिल जाएंगे. वेज के लिए भी एक थाली ऑप्शन ही था बट वो भी अच्छा निकला लकीली. सो वेज नॉन वेज वालों के लिए दोनों के लिए सुविधा है वहाँ पे. एंड आई प्रिटी मच लव द फूड. आप लोगों ने तो अब तक वो फूड के वीडियोस देख ही लिए होंगे. हाउ टेम्पटिंग डज दैट लुक. प्रॉपर टेस्ट आ रहा था मालवनी. आई स्पेसिफिकली लव मालवन फूड. सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. ऑल्सो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि मे बी वी माइट गो फॉर वाटर स्पोर्ट्स एट दिवे आगर बीच. एंड वहाँ पे एक मंदिर भी है. आज संकष्टी भी है. सो दैट वुड बी अ गुड टाइम टू गो देयर. एंड ना मेरा ना बीच पे ना कुछ रील्स भी बाकी रह गया था वो मुझे फिल्म करना पड़ेगा. सो या I'm gonna miss this place because yeah, of course this is very very pretty. When I posted a story on Instagram बहुत सारे लोगों ने कहा कि श्रीवर्धन उनका विलेज है which is a cool thing यार. ये मतलब मैं आप लोगों के विलेज में आई हूँ एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे बीचेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन है. होम स्टे भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है. आई गेस 1500 to 2000 के रेंज में आपको बहुत डिसेंट सा घर मिल जाता है स्टे करने के लिए. एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे रील्स यहाँ पे शूट कर लिए हैं. ऑलमोस्ट 15 रील आइडियाज़ मैं घर से ही प्लान करके आई थी. सो आई हैव डन अ स्मार्ट जॉब. बहुत अच्छे अच्छे नेचर व्यू यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है एंड पूरा मौके का फ़ायदा उठाते हुए आई हैव
शॉट लॉट ऑफ रील्स, स्पेसिफिकली फैशन रील्स. सो इन केस जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, प्लीज़ गो हेड फॉलो मी आउट देयर. माई हैंडल इज़ Pooja_Bera, पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज आउट देयर. दोज हु आर OG फैंस वुड डेफिनेटली नो यार मैं कितने सारे स्टोरीज पोस्ट करती रहती हूँ. सो अभी टाइम हो चुका है इस प्लेस को अलविदा कहने का. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे और क्या क्या चीज़ें होने वाली है. वॉट एवर इट इज़, आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. तो अभी हमने मंदिर का दर्शन भी कर लिया. दिस इज़ श्री सुवर्ण गणेश मंदिर दिव्यागर. एंड इसके बाद हम जाने वाले हैं दिव्यागर बीच में. सो यहाँ पे बहुत कम गर्दी थी आज. आई एम सरप्राइज. आज तो संकष्टी है. आई एक्सपेक्टेड कि बहुत ज़्यादा गर्दी होगी बट बिल्कुल भी गर्दी नहीं थी. अभी कांट वेट टू गो टू दिव्यागर बीच. इसी के वजह से आई एम मेकिंग दिस व्लॉग. एंड आई होप कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी हो, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है वहाँ पे. रवि, ये सब वीडियो में ये हो रहा है और मैं डालने वाली हूँ पक्का ये शॉट मेरे अपने वीडियो चैनल में. ठीक है, बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो, भूलना मत. डाल रहे. अरे जल्दी डालो. ओके ओके, ऑल कैलकुलेशंस डन. ऑलराइट, सो मंदिर के यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे वी डू हैव दिस दिव्यागर बीच, जिसके बारे में मैं इतना ज़्यादा हाइप कर रही थी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस ब्लॉग. एंड यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं ऑलरेडी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है. उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे गॉगल्स एंड नॉर्मल शॉप है जहाँ पे आप कुछ भी वाटर स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो भी सामान लगने वाला है दैट यू कैन टेक. एंड बच्चों के खिलौने भी काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं. ओवरऑल यहाँ से मुझे यहाँ व्यू दिख रहा है बीच का एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी. आई कांट वेट टू गो देयर. Alright, so I just quickly change into वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए क्लोथ. एक बेसिक क्रॉप टॉप पहना है एंड नीचे व्हाट डू आई कॉल इट, टाइट्स. यस, क्लोविया के टाइट्स एज यूजुअल. आई लव क्लोविया बाय द वे. ओके, सो आपने अब तक देख ही लिया रहेगा मैंने कैसे ATV राइड किया एंड इट वॉज फन. ऑल्दो मुझे प्राइस रेंज अभी याद नहीं है बट मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी द प्राइस रेंज ऑफ ऑल दी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वी अंडरवेंट. अभी हम और भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं. यहाँ पे आने के बाद पता चला यहाँ पे जेट स्की और बनाना राइड है. सो जिनको भी ये दोनों चीज़ें पसंद है शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. अगेन वेरी क्लीन बीच, वेरी ब्यूटीफुल. एंड यहाँ की रेत तो ओ माय गॉड,
काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, पैरों को काफ़ी टाइम बाद अच्छा फील हो रहा है. You guys know how sad I was in my life and finally vacation मिल गया है, so I'm making the most out of it, but deep down I do miss my mom. Literally मुझे मंदिर में रोना आ गया था because I really wanted my mom to be beside me. Never mind, अभी और बाकी के 2 राइड्स जो बाकी है, वी आर गोइंग टू डू दैट. बीच में भी थोड़ा बहुत फन होने वाला है, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट दोस क्लिप्स राइट हियर. बीच पे आके एकदम बचे भी जाते हैं यार. मैं तो लिटरली रेत को लेके अच्छे से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी एंड आई मेड अ क्रिसमस ट्री एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस. एंड बाजू का जो आपने कासल देखा था वो मैंने नहीं बनाया था, मेरे फ्रेंड ने बनाया था. एंड आई नो दैट लुक्स way more prettier than mine, but that's fine yaar, it's fine. We are here just to have fun. I mean, यार शौक थोड़ा बहुत तो बनता ही है. Now it's time for water sport activities. Oh my god, this is one of a kind experience जो कि आपको लाइफ में ट्राई करनी चाहिए. मैं तो 1 नंबर की फटती हूँ, मुझे तो पानी में उतरने में ही फटती है मेरी. Still I managed to enjoy this rides and I'm really happy that I tried it. You guys know your girl is a daredevil and उसे एक्सपेरिमेंट करना काफी ज़्यादा पसंद है. एंड इस पर्टिकुलर राइड में तो लिटरली मेरी फट गई थी. दिस इज कॉल्ड डिस्को बोट एंड पानी के अंदर जाने के बाद ये बोट इस तरीके से हिलने लगता है, क्या ही बताऊं. तौबा मेरी तो रूह कांप गई थी लिटरली. एंड really fun trying all the rides. Now ATV राइड्स के बाद हमने कुल मिला के और एक्स्ट्रा 4 राइड्स ली थी. जो 4 राइड्स थे ATV राइड के बाद उसके चार्जेस 800 रुपीज पर पर्सन थे. इट वॉज लिटरली फन क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है ना काफी अच्छे से उड़ा देते थे हमको पानी के अंदर. एंड आई लिटरली हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ हियर. एंड ये राइड भी ना एकदम अजब गजब ही था, इतना ज्यादा शफल हो रहा था. आई वॉज लिटरली स्क्रीमिंग ऑल द टाइम. एंड इट्स टाइम फॉर द लास्ट राइड विच इज बनाना राइड. आई होप बहुत सारे लोगों ने ये तो पक्का ट्राई किया होगा. And it was really fun trying this ride as well क्योंकि मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही था ना यार. Also आपकी लड़की ने पानी के अंदर कूदी मार दी थी बीच में and it was really fun. और फेस की तो लिटरली वाट लग चुकी है. Lot of tan, my entire body is tanned by the way. But anyways घर पे बहुत सारे products है. I'm going to apply all those beauty skincare products. एंड आई होप कि सब ठीक हो जाए कुछ ही दिनों में. एंड या दिस इज द व्यू. द सन इज हिटिंग राइट ऑन माई फेस बट फिर भी यार काफ़ी अच्छा लग रहा है. दिस इज़ यू नो वन ऑफ अ काइंड ऑफ ए मोमेंट इन योर लाइफ जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी जीते हो. सो डेफिनेटली ऐसे टाइप के पीसफुल बीचेस में तो आपको आना ही चाहिए. खेलो थैंक यू मुन्नी. नाची 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 गेटो नाची गेटो नाचो करो. आने के बाद भी कोई दोस्ती का मौका मैंने नहीं छोड़ा. बीच में ना कोकोनट वाटर इतना अच्छा लगता है ना क्या ही कहूँ. एंड गरम भजिए डाइट की तो लिटरली मैंने वाटी लगा दी. यू गाइस नो आई स्टार्टेड जिमिंग. स्टिल दिस वाज द मोमेंट ऑफ माय लाइफ. आई वांटेड टू ईट एवरी फ्रिकिंग थिंग आई लव्ड. भजिया भी खाए एंड वड़ा उसर भी खाया एंड साबुदाना वड़ा. दैट्स माय अल्टीमेट फेवरेट. ऑलराइट गाइस, सो मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी. एडिट करते करते सोच रहा है कि एंड भी कर दूँ व्लॉग. आई होप यू गाइज लव वॉचिंग दिस व्लॉग. प्लीज़ शेयर करना. एंड कभी भी प्लान कर रहे हो ऐसी जगह जाने के लिए तो डू टैग मी ऑन योर स्टोरीज. आई वुड लव टू सी योर पिक्चर्स देयर. एंड या आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर. आई लव यू ऑल.